Hello students, class 9, we are taking up the third unit, The Little Girl by Catherine Mansfield. This lesson tells about the very relationship between parents and children. Parents always try to observe their children, find out their attitude, aptitude, and also his inclinations. But do children try to recognize their parents? Some children are quite fed up with their parents. Some parents, out of ignorance, not knowing, not paying attention to the very aptitude of their children, they happen to develop a cross relationship between themselves. It has been a sequence of life in almost all families. To some extent, we can say that it is a matter of misunderstanding. A child is born free, but when parents become possessive, they want to dominate their wishes, desires, aptitude, and everything. It is all because of the blind love that they have in their heart, hidden somewhere, where rationalism is missing. Rationality is gone, because they think that my child is mine. They don't think that as I was born, likewise he or she is born, and we have got to help him grow the way he likes. In some tribal belt, it is done like that, but there remains a great unity that they have got to observe all the societal bindings that their elders had created. They happen to irritate others, but at times they happen to be very helpful in protecting them. It is all about when you study about the relationships that exist in between humans, human society. As basic needs of all humans are the same. So whatever be the color of customs, rituals, or ideas, but they are basically related to that. That is why it is said that like in a garden there are various kinds of flowers of different hues, different smells, different structures, and we cannot compare two in exact manner objectively. Whenever we say that I like this flower, that is your personal, that is my personal attitude, but every flower is designed by nature in a very queer, very peculiar, in a distinct, different order. Distinct, different order. Likewise, we should also look at the children, and children should. They want their parents fulfill all their wishes. It is their birthright to desire for things, wish for something, and it is the pious duty of all parents to fulfill their needs. And history has so many events recorded in which tell that parents gave up their life for the sake of fulfilling the desires of their children. This is the possessiveness of the children of their parents. So it is just a thing that we cannot blame either parents or the children. Rather, there should be a balance in between the children and parents, that they should be understanding one another. This is the very theme of this very lesson. इस लेसन में बच्चे और उनके माता पिता के बीच के संबंध को दर्शाया गया है। क्या सभी पेरेंट्स एक ही समान होते हैं?
एक जगह तो है कि अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति पॉजिटिव होते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चा वही काम करे जो वो चाहते हैं, शायद अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को भी चाहते हैं, उसी के द्वारा रियलाइज़ करें। कभी कभी रिजल्ट डे के दिन ऐसा वाकया होता है when the parents happen to be very angry at the very poor score of their children. Then at times elder teachers happen to take a cue to convince them that what you could not fulfill in your life, why do you expect that your children will do so? Let him grow the way he likes. You just help him. One day you will go away. He will have to live his life on his own. एक दिन वो आप खुद चले जाओगे, उसको अपनी ज़िंदगी अपनी जीने। आप लाख दे जाओ, अगर वो इस लायक नहीं होगा तो उसको बर्बाद करते देर नहीं लगेगी। आप कुछ भी नहीं दे के जाओ, अगर वो सामर्थ्यवान होगा तो शायद आपके सपनों से भी ज़्यादा कुछ कर लेगा। आप केवल हेल्प कीजिए वो जो चाहता है उसको। हाँ, अच्छाई और बुराई उससे उसको वार्न करें। यही काम टीचर भी करते हैं, यही काम पेरेंट्स भी करते हैं। लेकिन हर पेरेंट्स का बिहेवियर पैटर्न अलग अलग होता है। कोई डांट के फॉन्डलिंग करता है, दुलार करता है, कोई बहुत मीठी आवाज़ में करता है, कोई फटकार के करता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, हर बात को सही मान लेता है। तो तरह तरह के आयाम हैं व्यवहार के, जिनके द्वारा माता पिता और बच्चे अपने संबंधों को जीते हैं, भोगते हैं। तो अब आइए, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? Father, daughter and mother. There is granny also. Chapter wise, I am just explaining the content contained in the very paragraph, and then onwards I will give you some questions. Better practice at home. Each question will be confined to be answered not more than 30-40 words. Some questions may have answer, perfect answer, accurate answer in single line as well. So see, to the little girl he was a figure to be feared and avoided. उस नन्ही बच्ची के लिए वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिससे भय पैदा होता था। कौन सा व्यक्ति? द फादर ऑफ दिस डॉटर हु इज केजिया। फादर का इस तरह का पर्सनालिटी है बच्चे की नज़र में कि शी इज ऑल द टाइम स्केयर्ड ऑफ हर फादर। क्यों, कैसे? तो बिहेवियरल पैटर्न को यहाँ दिखलाया गया है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। हर सुबह अपने काम पर जाने के पहले फादर अपनी बेटी के, उस नन्ही बच्ची के कमरे में आते हैं, उसको कैजुअल किस देकर, जो वेस्टर्न कंट्री में ये प्रथा है, प्रचलन है। जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तरह तरह का है। तो हर रिचुअल अपने आप में, हर कस्टम, कन्वेंशंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दूसरे लोग उसको मानते हैं, उसको उसके अनुसार काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा अच्छा उसका बुरा, मेरा बुरा उसका अच्छा। इस तरह से सोचना ही गलत है, क्योंकि इससे आपको एक तरह का मैलिशियस फीलिंग्स डेवलप करता है। सो लेट अस रिस्पेक्ट एवरीथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग, दैट इज फॉलोड बाय ह्यूमंस।
इसका रिस्पॉन्ड वो कैसे करती थी? शी रेस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर डाउन द रोड। लेकिन उसके पिता जब अपने गाड़ी पर चढ़कर जाते तो ज्यों-ज्यों वो गाड़ी की आवाज़ धीमी पड़ती जाती उतने ही ज़्यादा वो रिलीफ्ड महसूस करती थी केजिया, जैसे लगता है सांस लौट आए। जब तक पिता घर में होते वो डरी सहमी सी रहती थी, डरी सहमी सी रहती थी, और ज्यों ही वो चले जाते तो वो उन्मुक्त महसूस करती, लिबरेटेड महसूस करती। नाउ I would like to give you question, write it. See, how did Kezia feel of her father while he was at home? How did Kezia feel of her father while he was at home? जब पिता घर में होते तो केजिया को क्या महसूस होता था? In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. जब वो शाम में घर लौटते तो उसकी वो स्टेयरकेस पर सीढ़ी पर होती खड़ी, और वहाँ से उसकी अपने पिता की गंभीर आवाज़ सुनाई पड़ती, मेल्स हैव ग्राफी साउंड। Bring my tea into the drawing room. Has not the paper come in? Mother, go and see if my paper is out there and bring me my slippers. और माँ को, मतलब केजिया की माँ को, मतलब अपनी पत्नी को वो आदेश देते। हमारे यहाँ भी लगभग ऐसा ही है और कुछ इसी तरह का रिलेशनशिप है, हालांकि सब देश में ऐसा नहीं है। और भारत जो कि विविधताओं का देश है, उसमें रिलेशनशिप की नई नई परिभाषाएं लिखी जा रही है, लिखे गए हैं। कई कल्चरल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उनका अपना अपना रीति रिवाज होता है, उसमें आपस में स्पाउस एक दूसरे को कुछ खास ढंग से ट्रीट करते हैं। लेकिन कॉमनली हमारे देश में माना जाता है कि हस्बैंड इज द मास्टर एंड वाइफ इज सबसर्विएंट टू द हस्बैंड। व्हाई? इट इज द पायस ड्यूटी ऑफ द हस्बैंड टू लुक आफ्टर हिज वाइफ थ्रू थिक एंड थीन, and the wife becomes just a thing of great prestige in the eyes of the husband, so he can give up life for the sake of his wife. In other civilization, in other cultural traits, whenever there is some sorts of discord between the spouse, they divorce. One turns south, another turns north. But in our culture, it cannot be imagined that when betrothed they can part, only death can part. हमारे यहाँ का कल्चर है कि शादी हो गई तो केवल मौत ही जुदा कर सकती है। उन लोगों के यहाँ, बहुतों के यहाँ ऐसा नहीं है। अगर डिस्कॉर्ड हुआ स्पाउस में तो एक उत्तर चला, दूसरा दक्षिण चला, जो कुछ था सब खत्म हो चुका। लेकिन ऐसा नहीं होता है अपने यहाँ, इसलिए कि पत्नी को अगर दासी माना जाता है और पति को स्वामी, तो उसके बीच एक बहुत बड़ा बंधन होता है कि हर हालत में पत्नी के लिए जान तक कुर्बान करने को पति तैयार रहता है, सब कुछ खत्म करने को, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके कंफर्ट्स के लिए, उसके ऑनर के लिए, उसके सब के लिए।
वैसे दुनिया बदल रही है, कांट से यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। उसे पेपर लाने, चाय लाने के लिए कहता है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उसी समय माँ केजिया को बुलाती है। इफ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अच्छी लड़की हो तो आओ अपने पिता के जूते को खोलो। शायद अपने यहाँ इस तरह का प्रचलन नहीं है, क्योंकि अपने मिथिलांचल में तो बेटियों को लोग पूजा करते हैं कुमारी कन्या मान के, लेकिन उनके यहाँ कल्चर में इस तरह है कि शी मस्ट कम टू सर्व फादर। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, push open the drawing room door. तब केजिया मुझे मन से धीरे धीरे स्टेयर से उतरती और बहुत ही स्ट्रेच स्पेस में बेमन से वो अपने पिता के पास गया। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the picture. इसी बीच में वो अपना चश्मा पहन लेते, आँख पर डाल लेते और केजिया की ओर देखते। उनकी वह दृष्टि केजिया को भयाक्रांत कर देती थी, फ्राइटन कर देती थी। Well, Kezia, hurry up and pull up those boots and take them out. Have you been a good girl today? I don't know, father. तब उसको कहते हैं जल्दी आओ खोलो, क्या तुम अच्छा काम किए, अच्छी लड़की की तरह रही है। अच्छी लड़की की तरह होना मतलब always abide by the instructions of the mother when the father is absent. When the father is inside the house, parents are both parents are there. You have got to abide by their instructions. That is the sign of, that is the mark of, that is the standard of good behavior of a good girl. In all societies, it happens to be the mark of honor for the daughter, for the son, if they behave in a particular order. You don't know if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. वो तुतलाकर भयक्रांत हो जाती है, तो तुतलाकर बोलती है, तो कहती है कि फादर कहते हैं अगर तुम इस तरह से बात करोगे, स्टटर ज़्यादा करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शायद डॉक्टर के यहाँ जाना ही अपने आप में एक भयभीत करने वाला कारण होता है। डॉक्टर, छोटे बच्चे तो रोने लगते हैं, वैसे आजकल के बच्चे के लिए अच्छा सा अवसर होता है बाहर घूमने का, लेकिन डॉक्टर मतलब सुई, मतलब चुभन। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह स्टटरिंग एक तरह का फ्लॉ था उसके कैरेक्टर में, उसके बोली में, बल्कि फादर को देखकर वो इतना भयभीत हो जाती कि वो स्टटर कर देते। हम लोग आप भी जब गुस्से में होते हैं या भयभीत हो जाते हैं तो हमारी आवाज़ सही नहीं निकलती। इफ़ यू आर पुट ऑन द डेज एंड यू आर आस्क्ड टू डिलीवर ए स्पीच for the first time, how you feel? Certainly you will get nervous because you are not used to that. But very soon, if you come across this sorts of situation several times, gradually your confidence will be built up, and then you will be able to deliver your speech with all your acumen, with all your intelligence, and you will be quite impressive, quite impressive. Had quite given it up, but only with father, because then she was trying to so hard to say the words properly. ऐसा होता था, पिता के रहने पर होता था, ऐसे उसमें ये दोष नहीं था। What is the matter? What are you looking at? They said, what are you looking so wretched about, mother? क्या बात है? तुम इतना जो है तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं लग रही हो, अपनी पत्नी से पूछते। I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. इसको सिखला, अगर वो ठीक ढंग से बिहेव करना, बात करना नहीं सीखेगी तो क्या होगा, कल इसका लाइफ सेट नहीं होगा। और उस हालत में लड़की के लिए शायद हर देश में, हर समाज में सबसे बड़ी जरूरत उसके लिए मैरिज माना जाता है। पता नहीं क्यों, बिकॉज इट इज ए सोसाइटी dominated by males. The cultural trend of
remaining a single person, individual life, it is not perhaps acceptable in the society or in all countries, perhaps in all countries, so far I know. But a new trend has come up, which you will come to know later on, or might have known, as in this very age of internet, children are older than their age. ये ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का क्या मतलब हुआ? वो इस लायक हो जाएगी, इस तरह का दुर्गुण सब उसमें आ जाएगा कि उसका लाइफ सोशली सेट नहीं होगा, तब वो बहुत ही अपमानित सा महसूस करेगी, अंत में वो सुसाइड करेगी। बहुत जगह होता है, वैसे भारत और बिहार में और अन्य जगह भी कहना मुश्किल है कि मैरिज इज सॉल्यूशन टू लाइफ, क्योंकि मैरिज के बाद सबसे बड़ा आफत आता है कि उसे मार डाला जाता है, डाउरी। जो कहते हैं बहुत खराब काम है, वही लोग ज़्यादा किया करते हैं, क्योंकि दे आर लिविंग डबल फेस लाइफ। विवाह शॉर्ट भी। अब फादर का कैसा रंग है? बहुत लंबे तगड़े आदमी हैं। His hands and his neck, especially his mouth, very yawn. खासकर उनका चेहरा जब वो यॉर्निंग करते, हाँफते थे, हाफी लेते, तो अचानक उनका जबड़ा बहुत बड़ा हो जाता, बड़ा लगता था, और केजिया उसे देख करके भयभीत हो जाती थी। Not a pretty face he possessed, rather he was a robust personality. Thinking about him alone was like thinking about a giant. वह अपने पिता के बारे में जब भी सोचती तो लगता था कि राक्षस है। राक्षस की कल्पना हम लोग ऐसे ही करते हैं कि सब चीज़ उसका जाइगेंटिक होता है, विशाल आकार का होता है, देख के ही खौफ आ जाए। जैसे वो कौन है अपने इंडिया का WWE में खेलने वाला अली खली। On this very point, we can have some questions. How did Kezia feel up? Only one character has come with name. Later on, all characters will come. Then I will write it. Again, another question. Write it. Said, how did the robust physique of the father impact Kezia? पिता को देखने पर उसे एक राक्षस के होने की अनुभूति होती, क्योंकि स्टेचर में बिल्कुल ही वो विशाल थे, लंबे तगड़े थे, साथ ही वो मोटे भी थे। तो इस सब के कारण उसको, और उनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ग्रफी थी, ये सब उसके भीतर एक दहशत पैदा करता। सो शी फेल्ट अबाउट हिम एज ए जायंट। अब संडे को कैसा दिन बीतता? पैराग्राफ 4। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर इन लॉ। अब हाउ डज द ग्रैनी ट्राई to make Kezia socialize with her parents? चूँकि इस तरह का खौफ था उस बच्चे के हृदय में, जिसके प्रति शायद संभवतः पेरेंट्स नहीं फील कर रहे थे।
पेरेंट्स के हृदय में कितना प्रेम था ये केजिया पहचान नहीं रही थी। तो देखती थी ग्रैनी की वो बराबर जो है सो माता पिता से दूर रहने की कोशिश करती। सी हैड मार्क, इसलिए वो संडे को जिस दिन उसके पेरेंट्स भी होते, मदर भी होते, दोनों होते, तो वह केजिया को नीचे भेजती सो दैट शी कुड सोशलाइज विथ हर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स कुड ऑल्सो शो देयर टेंडर फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर डॉटर। As the elders she was doing so, she sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन जब वह नीचे जाती तो देखती थी कि माँ कुछ पढ़ रही है और पिता सोफे पर लेटे हुए सो रहे हैं। तो ये क्या करती, सो रहे हैं और माथे पर मुंह को ढक लिए हैंडकरचीफ से, रुमाल से। उनका पैर एक कुशन पर रखा होता और बड़ी गहरी निद्रा में खर्राटे लेकर सो रहे हैं। तो केजिया क्या करती, वहाँ पर एक स्टूल लेकर बैठ जाती और गंभीरता से अपने फादर को देखती एंड आज द टाइम। और जब वो उठते नींद से तो पूछते क्या समय हुआ है। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। और केजिया चुपचाप अपने पिता को देखती रहती, आंकने की कोशिश करती अगला स्टेप उनका क्या होगा, कहीं कहीं भयभीत न कर दे। तो हमेशा वो आशंका में भरी रहती। तो उस समय उसकी मुखाकृति ऐसी होती, जेस्चर ऐसा होता कि फादर मार्क्ड इट एंड दे कमेंटेड दैट, इस तरह से मत स्टेयर करो, तुम ऐसे करती हो तो क्या लगता है नन्ही सी आउल हो, उल्लू हो, जैसे उल्लू ब्लिंक नहीं करता, लाइक दैट। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. अचानक उसको कोल्ड लग गया, सर्दी जुकाम हो गया, घर के भीतर थी। तो ग्रैनी ने उसको कहा कि तुम्हारे फादर का बर्थडे अगले सप्ताह, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उसने सजेस्ट किया कि तुम एक येलो सिल्क से पिन कुशन बनाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता के लिए यह बर्थडे गिफ्ट होगा। आते हैं तो सोफा पर ही लेट जाते हैं माथे रखकर, अगर यह कुशन उनको होगा तो लेटने में ज़्यादा सुविधा होगी। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. जितना उसमें कॉटन आना चाहिए उससे ज़्यादा कॉटन 3 साइड से उसने सी लिया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, मोटा डबल कॉटन का मतलब डबल थ्रेड, मोटा कपड़ा सिल्क का था, उसको उसने सी लिया 3 साइड से। लेकिन अब उसके सामने समस्या आ गई कि भीतर में कौन सा स्टफ वो फिलअप करेगी ताकि वो पिलो अच्छा बन जाए, कुशन अच्छा बन जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये समस्या उत्पन्न हो गई। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। दादी बाहर गार्डन में थी, फुलवाड़ी में थी, इसलिए वो माँ के कमरे, मौका लगा माँ के कमरे में ये देखने गई कि अगर इधर उधर कुछ फेंका हुआ होगा स्क्रैप टाइप, तो उसको लेकर के ले आएंगे और उसको उसमें डाल देंगे। On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up. उसने देखा कि बेडशीट के नीचे बहुत सारा on the bed table she discovered a great many sheets of fine paper,
बेड के साथ जो टेबल लगा होता है उस पर बहुत सारा कागज़ का, अच्छे कागज़ का टुकड़ा सब देखा उसने, और उसने क्या किया कि उस सब को उठा लाई और उसी को उसने स्टफिंग कर दिया, उस कुशन में डाल दिया। सॉरी, इसमें एक और है, गैदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस। उस सारे कागज़ को उसने जमा किया, उसको छोटे छोटे टुकड़े में निटिंग किया और तब उसके भीतर उसने डाल दिया कुशन में। एंड देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और चौथा साइड को तब उसने सिलाई कर दिया। एंड द कुशन वाज रेडी। शी वाज हैप्पी विदिन बिकॉज शी वाज एबल टू गिव ए बर्थडे गिफ्ट टू हर फादर व्हिच ही रिक्वायर्ड मोस्ट। So she was quite contented and happy as well. बिल्कुल संतुष्ट और ये थी जो कुशन तैयार हो गया। Such was the joy of Kezia at the very prospect of giving that very cushion as birthday gift to her father. But what happens, that is startling. That night there was a hue and cry in the house. उसी रात अचानक घर में बहुत ज़्यादा शोरगुल होने लगा। Hue and cry, शोरगुल फ्रेज है। वैसे ह्यू का अर्थ कलर भी होता है, ह्यू का अर्थ कलर भी होता है। ह्यू एंड क्राई। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो जहाँ काम करते थे, तो अथॉरिटी के लिए अपने कंसर्न का, अपने फर्म का वो रिपोर्ट करना था। उस रिपोर्ट का जो कागज़ था वही गायब था, और वो भी घर से। रूम्स वेयर सर्च्ड, कमरे में चारों तरफ खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सारे नौकरों से सवाल किया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, अंत में माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। क्या तुमने देखा था हमारे घर के, हमारे बेडरूम के टेबल पर कागज़ कुछ पड़ा हुआ? ओह यस, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। मैंने तो उसको फाड़ डाला ताकि मैं सरप्राइज गिफ्ट अपने फादर को दे सकूं। ये कुशन। व्हाट, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अचानक कल्प्रिट वाज डिटेक्टेड, और तुरंत केजिया को स्टर्न वॉइस में, सख्त लहजे में उन्होंने उसको आदेश दिया कि नीचे में डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उस जगह फिर ले जाई गई जहाँ पर पिता आगे पीछे कर रहे थे, चिंतित होकर। जो अब लास्ट मोमेंट है, आज स्पीच देना था, रिपोर्ट करना था, तो वो प्रेजेंटेशन नहीं आज हो पाएगा। एंड ही विल फॉल इनटू बैड बुक ऑफ दैट वेरी अथॉरिटी और मे बी डिस्पेंस्ड विद द सर्विसेज। हो सकता है कि नौकरी से भी निकाल दिया जाए। बिहाइंड हिज बैक, वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड। माँ ने सारा वाकया कह डाला। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक गए और अपनी बेटी को बड़े गौर से उन्हीं बच्ची को देखने लगे। डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा किया? नो, शी विस्पर्ड, वो डर गई। और डरते हैं तो शायद हम झूठ ही बोलते हैं, डरते हैं तो झूठ ही बोला है। लेकिन इंटरोगेशन जब पुलिस करती है तो नहीं, जब तक डर पराकाष्ठा पर नहीं होता तब तक सच बोलते हैं। दोनों ही बातें। बड़े लोग जब डरते हैं तब सच बोलते हैं, और बच्चा डरता है तो झूठ। Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child is put to bed this instant. अपनी पत्नी को आदेश देते हैं, जो ऊपर के कमरे में जाओ और डैम थिंग का मतलब हुआ स्टिक विथ विच शी वॉज टू बी रिप्रिमेंडेड और फॉर chastising children. Usually parents in that very country keep a stick or a ruler or something like that. Perhaps in our society they don't. A children is supposed to be a blessing from God, so here parents respect their children.
But when the children grow up and they show their inner instinctive drives, which happen to be damaging to the family's status and the honor, then they discard. Still they don't want him die or her die. Rather they discard. Such is the deep love for the children in our Indian culture. See that the child is put to bed this instant. इसको तुरंत बिछावन पर मतलब अब सजा देने की बारी आ गई. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make it sad little pattern on the floor. अब वो रोने लगी. उसकी गलती पकड़ी गई थी, वो रोने लगी. उस कमरे में वो लेटी हुई थी जिस कमरे में सूरज की रोशनी आ रही थी, खास तरह का पैटर्न बन रहा था. Then father came into the room with a ruler in his hand. I am going to beat you for this. मैं तुम्हारी इस गलती के लिए पिटाई करने जा रहा हूँ. Oh no no, she screamed, hiding under the bed clothes. बेड क्लॉथ के नीचे वो घुस गई बचने के लिए. नहीं, he pulled them aside. उसने उस बेड क्लॉथ को बाहर फेंक दिया. Sit up, बैठो. And hold your hands, और अपना हाथ निकालो. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें इस बात की अंतिम शिक्षा दी ही जानी चाहिए कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको छूने की कोशिश मत करो. जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको छूने की कोशिश मत करो. ये गलती जीवन में कभी नहीं दोहराना. क्या आप लोग करते हैं इस तरह के? ये आप अपने से पूछिए. यू मस्ट, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. लेकिन ये तो आपके बर्थडे गिफ्ट के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. नन्ही गुलाबी हाथ पर वो रूलर की चला, हिट किया. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटे बाद जब ग्रैंडमदर ने पिटाई के बाद उसको शॉल में लपेट लिया और रॉकिंग चेयर पर डालकर उसको हिला रही थी, कंफर्ट कर रही थी, तो वो केजिया अपनी दादी से चिपक गई. शी वॉज गेटिंग ग्रेट कंफर्ट्स इन द लैप ऑफ हर ग्रैंडमदर. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? शी सॉफ्ट. उषा से लेते हुए उसने एक सवाल किया दादी से कि आखिर भगवान ने पिता नामधारी जीव को बनाया है क्या? पिता किस लिए बनाए जाते हैं? बच्चों को पिटाई करने के लिए. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep. Pet, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. देखो, तुम अपना नाक साफ करो, ये हैंकी लो, नाक साफ करो और सोने चले जाओ. कल तुम भूल जाओगी. मैंने तुम्हारे पिता को सारी बातें समझाने की कोशिश की लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन वो बच्ची कभी भूली नहीं. कौन? केजिया कुड नॉट फॉरगेट द वेरी हार्श पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय अ फादर टू हर इन एट सच ए स्मॉल एज. But the next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and red color flew into her cheeks. अगली बार जब उसने अपने पिता को देखा तो तुरंत अपना हाथ छिपा लिया, पीछे कर लिया ताकि वो देखे नहीं कि उनके रूलर के ने क्या कर डाला था उसके हाथ पर. Up to this part, another story starts. I just stop it here in the
It is first part. Part first. In the next period, we will deal with the second part or the final part, and then we shall do question answer. I shall explain, but you will have to prepare on your own at home so that you can develop your own expression, your own language. Thank you.